प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R and S connected in the form of a bridge. Between terminals A and C is connected a cell of EMF E through a key K1. Between points B and D is connected a galvanometer of resistance G through key K2. अब ये किस काम आता है? It forms the basis of most of the instruments which are used to find out unknown resistance. इसको व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों कहते हैं? Because it was popularized by Sir Charles Wheatstone. कैसे वर्क करता है ये? अब जब हम इसकी K1 को क्लोज करते हैं और फिर K2 को क्लोज करते हैं तो करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में से। मान लीजिए कि करंट I फ्लो कर रहा है यहाँ से। Then at point A, this current I will divide itself along 2 branches AB and AD. Let current I1 flows through resistance P. Then the rest of the current I minus I1 will flow through R. At point B, current I1 divides itself along 2 branches. Let current IG flows through galvanometer. Rest of the current I1 minus IG will flow through Q. At point D, the two currents IG and I minus I1 combine. So through S the current will be I minus I1 plus IG. At point C, again these two currents I1 minus IG and I minus I1 plus IG, they combine to form current I. So now we know that current through P is I1, current through Q is I1 minus IG, current through R is I minus I1 and through S is I minus I1 plus IG. अब क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल? If on pressing or if on closing the battery key K1 first and then galvanometer key K2, if galvanometer shows 0 deflection, then P over Q is equal to R over S, or P over R is equal to Q over S. Means this resistance divided by this resistance must be equal to this resistance divided by this, or resistance P divided by R is equal to Q divided by S. ये कब वैलिड होगा? When galvanometer shows 0 deflection. ऑन पासिंग द करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में से, लेकिन फिर भी अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट 0 होगा, दैट इज इफ IG इज इक्वल टू 0, देन दिस रिलेशन होल्ड्स। आइए इसको प्रूव करते हैं। हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू दिस लूप एंड थ्रू दिस लूप। आइए लूप्स ड्रॉ कर लेते हैं। Applying Kirchhoff's second law to loop ABDA. Resistance is P, current through it is I1, product I1 into P. This product will be positive because we are traversing in the direction of current. Now plus next is galvanometer. Its resistance is G, current through it is IG, product हो गया G into IG. This product will also be positive because we are traversing in the direction of current. Next, now through R we are traversing in the opposite direction, opposite to current. Resistance is R and the current is I minus IG. Product ये हो गया, लेकिन ये नेगेटिव बिकॉज करंट इस डायरेक्शन में, हम ट्रेवर्स कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, माइनस दिस इक्वल टू, अब इस लूप में कोई भी सेल नहीं है, सो दिस इज इक्वल टू 0। चलिए, नाउ इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड,
current through galvanometer is 0. Ig is equal to 0. Let's put Ig is equal to 0 in this equation. It becomes I1 into P plus G into Ig. This factor will become 0 minus R into I minus I1 equal to 0. तो ये इक्वेशन बन जाएगी I1P इक्वल टू R इंटू I माइनस I1. इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1. चलिए अब अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू क्लोज्ड लूप BCDB. रेजिस्टेंस Q, करंट I1 माइनस IG, प्रोडक्ट हो गया Q इंटू I1 माइनस IG. This will be positive because we are traversing in the direction of current. Next, S is resistance. Current इतना product हो गया S into I minus I1 plus IG. This product will be negative because we are traversing opposite to the direction of current. Next, galvanometer. Resistance G, करंट IG, प्रोडक्ट हो गया G इंटू IG. ये प्रोडक्ट नेगेटिव बिकॉज वी आर ट्रेवर्सिंग अपोजिट टू करंट IG. अगेन दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज देयर इज नो सेल इन दिस लूप ऑल्सो. नाउ बिकॉज द ब्रिज इज बैलेंस्ड, IG is equal to 0. Putting IG is equal to 0 in this equation gives Q इंटू I1, IG 0 हो गया, माइनस S इंटू I माइनस I1, IG 0 हो गया. ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 0. हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? Q इंटू I1 इक्वल टू S इंटू I माइनस I1. इसको हम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं. 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं. I1 इंटू P इस साइड पे, फिर डिवाइडेड बाई Q इंटू I1, ये इक्वल टू इधर R इंटू I माइनस I1 डिवाइडेड बाई S इंटू I माइनस I1. तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, ये I1 कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास आ गया P ओवर Q इक्वल टू R over S. This is the Wheatstone bridge principle. यहाँ से S फाइंड आउट कर सकते हैं. S is equal to Q into R डिवाइडेड बाय P. यहाँ क्या किया जाता है? K1 को क्लोज करते हैं, फिर K2 को क्लोज करते हैं और P, Q और R को एडजस्ट किया जाता है सो दैट द गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन. उस केस में यहाँ से हम S फाइंड आउट कर लेते हैं. अब ये थ्योरेटिकल है, हम इसकी एप्लीकेशन मीटर ब्रिज में फाइंड आउट करते हैं रेजिस्टेंस. इस मेथड से हम पढ़ेंगे आगे. और क्या हम कर सकते हैं इससे? हम फाइंड आउट कर सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑल्सो. हम गैल्वेनोमीटर को इस ब्रांच में, CD ब्रांच में S की जगह लगा देते हैं. कैसे? इस तरह से हम गैल्वेनोमीटर को यहाँ कनेक्ट कर दिया. अब P में से उसी तरह से करंट I1 फ्लो करेगा, Q में से I1 माइनस I0 करंट फ्लो करेगा इस ब्रांच में से, R में से ये करंट और गैल्वेनोमीटर में से ये करंट. अब क्या जाता है कि हम इसको पहले क्लोज करते हैं, करंट I, और इसको ओपन रखते हैं. ओपन रखने से क्या होगा कि ये करंट 0 हो जाएगा, I0 फ्लो नहीं करेगा इस ब्रांच में से. अब जब I0 यहाँ से फ्लो नहीं करेगा तो इसमें गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट? I माइनस I1. अब इस करंट की वजह से गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन देगा. सपोज की डिफ्लेक्शन है n, Cn इज इक्वल टू 15. एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में हम मीटर ब्रिज यूज़ करते हैं, जो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उसमें हम n को 15 to 20 चूज़ कर लेते हैं. हम एडजस्ट करते हैं P, Q और R को इस तरह से कि डिफ्लेक्शन अबाउट 15 आ जाए. से 15 डिफ्लेक्शन आ गई. ये ओपन है.
अब क्या किया जाता है, इसको क्लोज करके हम एडजस्ट करते हैं पी क्यू और आर को, सो दैट कि गैल्वेनोमीटर में दोबारा से डिफ्लेक्शन उतनी ही आ जाए जितनी तब थी जब ये ओपन था। अब इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिज इज बैलेंस्ड, नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच बी डी। तो अब हम क्या फॉर्मूला लगा लेंगे, P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर S की जगह यहाँ पर गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस G, और G को हम फाइंड आउट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ P, Q एंड R। इस मेथड को कहते हैं केल्विन्स मेथड टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसको इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड भी कहते हैं, क्योंकि पहले जितनी डिफ्लेक्शन थी इसको क्लोज करके दोबारा से हम सेटिंग करते हैं पी क्यू और आर की, ताकि डिफ्लेक्शन सेम आ जाए। सो इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड भी इसको कहते हैं। सो बच्चों, आई एम श्योर यू हैव फॉलोड। थैंक यू।